श्री स्वामी समर्थ. तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे आपल्या कृपाछत्र स्वामी या चॅनलमध्ये. तर श्रोतेहो, आज मी पुन्हा तुम्हा सर्वांसाठी एक नवीन अनुभव घेऊन आलेले आहे आणि तो भारतातला नसून तो दक्षिण आफ्रिकेतला, साऊथ आफ्रिकेतला आहे. तर बघा, एक ख्रिश्चन धर्मीय प्रांतातील व्यक्ती आणि त्यांनी आपला धर्म सोडून आपल्या स्वामी सेवेमध्ये येऊन त्यांनी आपल्या सर्वांना एक खूप सुंदर अशी हे दाखवलेली आहे की बघा, आपल्या हिंदू धर्मांमध्ये किती देवलोकांचं स्थान किती उच्च याच्यावरती आहे. आणि त्यातीलच महत्त्वाची सेवा म्हणजे आपल्या अखंड ब्रह्मांड नायकाचे जे नायक आहेत म्हणजेच आपले स्वामी, तर त्यांना कशी अनुभूती आलेली आहे तर ते आज आपण त्यांच्या शब्दामध्ये ऐकणार आहोत. श्री स्वामी समर्थ. श्री स्वामी समर्थ. श्री स्वामी समर्थ दादा ब्राइट ने मीटिंग ज्वाइन की है और वो काफी देर से सुन भी रहे थे, तो वो खुद अपना इंट्रोडक्शन देंगे. आई अलाउड टू हिम टू स्पीक. ब्राइट, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ अबाउट योर नेम एंड फैमिली and from how long time you know about Swami. Okay, my name is Bright Kwanzaa from South Africa. Actually, I'm a Ghanaian, but I'm based here in South Africa with my family. I've got a wife and 3 kids. I think it was about 6 months ago. It was a full moon day. That particular day, it was a full moon. And I had a dream. And in the dream, it's like there was a ladies that there were 3 ladies, and I met those 3 ladies, and they asked me where am I going, and I said no, I'm going for some errands, and they followed me. So when I was going, I entered the room, and when I entered the room, it's like I was there alone. And later on, one of the ladies knocked, and he begged me to give him money to buy bread. So I took out my wallet, wanted to give her the money. And when I was giving her the money, something told me in the dream not to give her. So I followed that one to go out and buy the bread for her. When we got there to the shop, there were some Indians, and they were, how do you call it? They were playing one of the Swami Samad. One of them, the Guru song there. So the lady disappeared, and the man asked me, what am I looking for? I said, no, a lady came to me to buy bread for her, but when I got there, she's not around. She has disappeared. And he said, okay, it's good that I did not give her the money. So the man escorted me outside, and that is the time I wake up from the dream. So the following day, I decided to go to the temple in this side of South Africa. So I went to the temple, I met the priest, I told the priest everything. And since from that day, I have become a Hindu. I've been visiting the temple. I think it's about 6-7 months now. Yeah. But just recently, I used to have dreams about Sri Swami Samath. I once had a different dream, like in the dream I was in the queue. Those ones, it's like they were, like I was not sure where the people were going, but I was just following them. So when I got there, they took my passport and they opened the passport and said, they mentioned the name, Sri Swami Samath. What are you doing here? And the dream is like they were playing the same music there. And they said, no, I'm not supposed to be there. Those people that I'm following, it's like they are all dead, so I don't have to be there. I have to go back and serve my people before I'll come back. And it's like in the dream I was crying and I was very sad. Yeah, and since then, anytime I see the picture or the music, I used to become, like, I used to have goosebumps. I used to cry, like, whenever I hear the name, or I used to have like shivering and some, like, I'm feeling very sad and all those things, emotional. Yeah.
So I decided to do some research. I told my priest about it, but he said in the Hinduism, like every guru is under a certain guru. So I have to look for those things, like someone that is under Guru Swami Samat line, because he said how do they ordain or they do something according to the line that you are coming from. Yeah. So that is why I was doing the research and I got the number, and you helped me yesterday to talk to this guru. Yeah. Very good. Yeah. Sri Swami Samartha, it was a great experience, and Yeah. definitely you got a best path to grow up your life about Sri Swami Samarth Maharaj. And Okay. yesterday Dada has told you you got a rebirth for Swami Seva only. That's why you Yeah. got this group link, and you got the margdarshan of Dada, and I wish that you will get your actual path for Swami Seva, what you want to do, and definitely you will get. Okay. So I wish from Okay. all our group members. Okay, it's Okay. very nice experience about you, and you got Okay. a rebirth. Dada told you about that in past birth also you were a Swami, like Swami Sevak. So now you are also Yeah. got a birth for Swami Seva only. Okay. So most welcome Okay. in the group. Yeah. And say all, and tell all, introduce yourself with Shri Swami Samartha. Like just tell to Shri Swami Samartha to all, and Dada also. Okay. Okay. Yeah. Okay. Dada. श्री स्वामी समर्थ. आता मगाशी त्यांनी जी चर्चा केली ना, थोडे शॉर्टकट सांगा जरा त्यांचे हा अनुभव हा सगळ्यांना. मी हा सांगते मी मराठीमध्ये. हा. हा And now, Bright, I'll tell your experience in Marathi. So please you Okay. listen, okay? I'll share your office screen, Swami's photo also, okay? So you Yeah. please listen here. Okay. Okay, okay, Okay. 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 Thank you very much, Bright. Shri Swami Samartha. Okay. Thanks. श्री स्वामी समर्थ. Right, you can mute yourself, okay? Okay. Okay. बघा, आपण काय करतोय आणि ही माणूस कालपासून मी तुम्हाला सर्वांसमोर मी याचा एक्सपिरियन्स शेअर केला होता. पण मलाही माहिती नव्हतं की जॉईन होत की नाही, कारण त्यांना समजतच नाही. आपली लँग्वेज डिफरंट आहे, तर कसं समजत. सडनली ही जॉइन और मैंने देखा कि वो जॉइन हुआ. मैंने जस्ट उन्हें ऐड किया अपने ग्रुप में, ऐड किया और उनको चैटिंग करके बोला कि प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. ठीक है, अपन क्या करते हैं, मैंने बोला सिर्फ अपना परिचय देना. अपन क्या करते हैं, अगर अपने को परिचय देने को बोला ना तो अपन पीछे हटते हैं. उनको स्वामी सेवा कैसे करना है देखा उन्होंने, कितने अच्छे से अपना पूरा एक्सपीरियंस और कितने अच्छे से शेयर किया. एक्सपीरियंस क्या था तो ये मैं आपको बताना चाहूंगी. उनका एक्सपीरियंस ऐसा था कि एक दिन क्या हुआ, उनका नाम है ब्राइट कौनसा, ओके, और साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले हैं वो. और उनका एज है 38 ईयर्स के एज है, और एक अकाउंटेंट है, और वो एक क्रिश्चियन फैमिली में पले बड़े हुए. पर उन्होंने अपना क्रिश्चियन फैमिली का पूरा जो भी था, उन्होंने उनके मतलब उनकी वाइफ और 3 बच्चे हैं उनके साथ में. बट उनको इस साल के शुरुआत में उन्होंने एक स्वप्न देखा. ठीक है, मतलब स्वामी महाराज जो स्वप्न में अपने को मार्गदर्शन करते हैं वो सत्य भी होता है. तो उन्होंने पर स्वप्न कैसा होना चाहिए, स्वप्न इस तरीके का मार्गदर्शन होना चाहिए कि जो आपको उनके रास्ते तक खींच कर लाए. तो एक स्वप्न क्या देखा उन्होंने कि 3 महिलाएं उनसे रोटी के लिए भीख मांग रही थी. तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने अपना पर्स निकाला और उनको पैसे देने लगे. ठीक है, पैसे देने लगे तो किसी ने उनको कहा कि रुको.
रुको करके। तो उन्होंने क्या किया कि मतलब वो पर्स अंदर रखा और उनको बोला कि चलो आप मेरे साथ सामने के शॉप पर चलो। जब वो वहां गए तो शॉप पर उन्होंने मतलब खाना खरीदने का जैसे फैसला किया। तो जब खाना खरीदने के लिए उन्होंने बोला ना, तो वो महिलाएं वहां से क्या हो गई, गायब हो गई। और वो महिलाएं कौन थी पता है? अपने इंडियन लेडीज थी वो। उन्होंने अभी जैसे अभी बोला एक्सपीरियंस में कि इंडियन लेडीज थी वो। उसके बाद में क्या हुआ, जब वो गया तो वहां का जो शॉपकीपर का जो ऑनर सॉरी शॉप का जो ऑनर थे, दुकान के जो मालिक थे, उन्होंने बोला कि आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपने उनको पैसे नहीं दिए। क्यों? क्योंकि वो महिलाएं बहुत बुरी थी, वो आपका अच्छा नहीं चाहती थी, वो आपकी प्रोग्रेस नहीं चाहती थी। तो उसके बाद में वो जो दुकान के मालिक थे वो भी हिंदू थे, और उनके दाहिने हाथ पर लाल कलर का मतलब साफा पग जैसा कुछ बंधा हुआ था। ठीक है, अब अपन समझ सकते हैं श्रीपाद प्रभु कैसे रहते हैं। ठीक है, तो और वो वहां पर उनकी शॉप पर जोर जोर से क्या चल रहा था, श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्था, श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्था, ऐसे करके वो गाना चल रहा होगा। ठीक है, तो उस दिन इनका माइंड पूरा चेंज हुआ। तो ये इन्होंने वहां से क्या किया, सीधे निकले और नेल्सप्रूट में एक विष्णु शिव का मंदिर है वहां पर दक्षिण अफ्रीका में। तो वहां वो गए और वहां उन्होंने उस दिन दर्शन किया। दर्शन करने वाले दिन भी पूर्णिमा थी, एंड टुडे इज ऑल्सो पूर्णिमा। सो व्हाट्स द कॉम्बिनेशन कि क्या है। ठीक है, आज भी पूर्णिमा है और उस दिन भी पूर्णिमा थी। तो उन्होंने क्या किया, जब से वो उस मंदिर में गए तब से उनकी हर बैठक में वो भाग लेते हैं। और जब भी वो उस मंदिर में जाते तो उनको ऐसा लगता है कि वो मंदिर में नहीं जा रहे हैं, वो उनका ऑन हाउस है, उनका एक घर है। उनको वो घर जैसा फील होता है। और उसके बाद में उन्होंने स्वामी महाराज की तस्वीर लगा रखी है अपने ऑफिस में। और जब भी वो उनका गाना या कुछ सुनते हैं ना, तो उनके गूजबम्स मतलब रोंगटे खडे हो जाते हैं, अंगाला काटा येतात आणि रडू येतात त्यांना। बघा किती छान, म्हणजे तुम्ही इमॅजिन पण नाही करू शकत की त्यांनी काय केलं और उनको ये मार्ग पर कौन लाया। तो मैं आप सबके सामने स्क्रीन शेयर करना बताऊंगी। और जब कल दादा ने उनको, सिर्फ क्या हुआ पता है, एक्सपीरियंस भी कैसे है, फेसबुक के थ्रू लिंक मिली करके उन्होंने यूट्यूब पे सर्च किया। यूट्यूब पे वैशाली ताई का वीडियो डला हुआ था। वैशाली ताई को उन्होंने मैसेज किया, मैसेज वैशाली ताई ने मुझे फॉरवर्ड किया, ताई ऐसा ऐसा मैसेज आया है। सडनली मैंने इनका कॉल भी आया, मैंने कॉल अटेंड करके बोला कि मैं थोड़ी देर में कनेक्ट होती हूँ करके। फिर मैंने, मेरा लंच टाइम चल रहा था, मैं उस टाइम मैसेज नहीं कर सकती थी क्योंकि कंटिन्यू कॉल होते हैं मेरे पास। मैंने बोला मैं आपसे 2:40 को कनेक्ट होती हूँ। 2:40 को कनेक्ट हुई मैं, और मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने मुझे ये क्वेश्चन पूछा कि मैं स्वामी के बारे में क्या जान सकता हूँ और कैसे जान सकता हूँ। मुझे मुझे सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है कि मैं यहाँ क्यों हूँ और स्वामी के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसा उन्होंने पूछा। मैंने जब उनको बताया कि ऐसा ऐसा अपना ग्रुप है ये वो करके पूरा इंट्रोडक्शन दिया, फिर मैंने स्वामी का पूरा बताया उनको, और सडनली मैंने सिर्फ रुद्र पाठ का ऑडियो शेयर किया। जब उन्होंने रुद्र पाठ का ऑडियो सुना ना, तो वो बोल रहे कि मैं अभी सुन रहा हूँ तो भी मुझे अश्रु आ रहे हैं। और मैंने बोला था कि मतलब रुद्र पाठ का ऑडियो वहां पे 24 मिनट से वो स्टार्ट होता है ऐसा करके। तो जब रुद्रपाठ का अनुभव सुना, मतलब रुद्रपाठ दादा के शब्दों में सुना, तो ही उनको बहुत पॉजिटिव फील हुआ। उसके बाद में दादा से हमने कनेक्ट किया। तो नीलम ताई, मैं, दादा और राइट, हम चारों थे। और हम चारों कनेक्ट हुए, दादा ने मार्गदर्शन किया, तब दादा ने आवाज सुनते ही बता दिया कि पूर्व जन्म में जो वो थे वो बहुत बड़े स्वामी सेवक थे, पर कुछ वासनाओं के कारण उनका रीबर्थ हुआ, पुनर्जन्म हुआ। और पुनर्जन्म में अभी उनको स्वामी ने ये दृश्य दिखाया और इसी मार्ग में लाया। क्यों? क्योंकि यहाँ से ही उनका कल्याण है और यहाँ से ही उनको उनकी आत्मीयता का परिचय होने वाला है। He will understand himself by द दादाज मार्गदर्शन, लाइक दादा ने ऐसा उनको बोला। ठीक है,
और उसके बाद में क्या हुआ कि जब मैंने रात को सारा सब कुछ रुद्र पाठ और इसका सब कुछ बताया ना, तब मैंने अपनी जो गुरुदेव दत्त प्रणाली होती है वो मैंने कैसे बताई। दत्त भगवान, श्रीपाद प्रभु, नरसिंह स्वामी और स्वामी महाराज, ये कैसे कैसे इनका क्या क्या कार्य था वो मैंने इन शॉर्ट उनको एक्सप्लेन करके दिया। ही वॉज लाइक सरप्राइजली ही वॉज फीलिंग गुड कि कैसा, मतलब कितना अच्छा है और कितना अच्छा लगा करके। और ये कल का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस था कि हम सोच भी नहीं सकते थे। और सडनली ये सोचो कि सामने वाला व्यक्ति 6 महीने से स्वामी को ढूंढ रहे हैं, पर स्वामी ने कहाँ लाकर खड़ा किया? दादा के सामने। क्यों? क्योंकि एक मार्गदर्शन कहाँ से मिलेगा? तो वो यहाँ से। एक मिनट, ये देखो, दिखा? इन्होंने अपने ऑफिस में स्वामी की फोटो लगा रखी है। और ये स्वामी की फोटो देखो, इसमें क्या दिख रहा है? भावना ताई के घर के स्वामी से या ज्ञानेश्वर दादा के घर के स्वामी से कम नहीं है ये फोटो भी। कितना सुंदर लग रहा है। असल में हम क्या करते हैं और ये क्या कर रहे हैं, ये परिचय देती है ये फोटो। हाउ ब्यूटीफुल फोटो है। आप सभी को इसका दर्शन हुआ होगा। किया सभी ने दर्शन? कितना सुंदर फोटो है और कितना ब्यूटीफुल, मतलब वो वातावरण लग रहा है। और आज उस बंदे ने अपना रिलीजियस पूरा चेंज किया है, क्रिश्चियन टू हिंदू। और चेंज करने के बाद में आज वो हिंदू में आकर उन्होंने नॉनवेज वगैरह सब कुछ छोड़ा है। और आज हमको अपने आप पर लज्जा शर्म आनी चाहिए कि हम इतना स्वामी के बारे में सोच कर भी हम कुछ नहीं कर सकते। क्या करते हैं हम? उठे छुटे, जा बेटा 4-5 अंडे ले आना, जा बेटा आज नॉनवेज बनाएंगे घर में। यही करते हैं? होता है ना, जो लोग खाते हैं उनके घर में होता होगा। पर जो लोग इस ग्रुप में ज्वाइन हुए ना, वाकई में वो लोग छोड़ सकते हैं। और ये स्वामी की प्रचिति है। तो स्वामी किस मार्ग से कहां तक ला सकते हैं? जब साउथ अफ्रीका से इंडिया में मार्गदर्शन हो सकता है, तो इंडिया से साउथ अफ्रीका, इन ऑल वर्ल्ड और ब्रह्मांड व्याप्त में भी स्वामी का मार्गदर्शन जाना चाहिए। और यही प्रेरणा हम सबको रखना चाहिए। इसी के साथ में यह एक्सपीरियंस का मतलब समापन करती हूँ। पर यह एक प्रेरणादायक स्टोरी है कि स्वामी ने किस तरह से उनको ये प्रचिति दी है। श्री स्वामी समर्थ। झालेली सर्व सेवा श्रीपाद श्री वल्लभार्पणमस्तु. श्री स्वामी समर्थ. Bright, you heard your experience I explained in Marathi. Okay. Okay? Yeah. Yes, please. Yeah. Yes, please. Okay. So from all of Yeah. us, Thank you very much. yeah, we welcome to you in our group and Shri Swami Samartha. Okay? Okay. Thank you. श्री स्वामी समर्थ. बघा किती छान आणि किती सुंदर अनुभव आहे. भारतातला नसून तो साऊथ आफ्रिकेतला तो अनुभव आहे. आणि बघा कुठं त्यांचा प्रांत आणि कुठला आपला प्रांत, पण बघा देव सगळीकडे आहेत आणि आपले ब्रह्मांड नायक तर सगळीकडेच आहेत, हे आपल्या सर्वांना माहितीच आहेत. असेच छान छान अनुभव ऐकण्यासाठी आपल्या कृपाछत्र स्वामी या यूट्यूब चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक दिलेली आहे आपल्या श्री गुरुदेव दत्त भक्त परिवार या ग्रुपची. व्हॉट्सअप आणि टेलिग्राम लिंक दिलेली आहे, तिथं जाऊन नक्कीच जॉईन करा. श्री स्वामी समर्थ.